न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। एक भाई पर अपनी बहन को मारने का आरोप, अंतिम संस्कार के लिए लाश ले जाने से पुलिस ने रोका, ले गई पोस्टमार्टम के लिए। কি করে মরলো? এক মাসের মধ্যে দুটো বোন তো মরতে পারে না। चक्रवर्ती तूफान याद से पश्चिम बर्धमान जिले में चल रही है तेज हवाएं, रुक रुक कर हो रही बारिश। बृहस्पतिवार को भारी बारिश की आशंका। आसनसोल शिल्पांचल में एक बार फिर से एक मंदिर में हुई चोरी। क्या एक भाई अपनी बहन की जान ले सकता है? इस सवाल का जवाब ना में ही मिलेगा। लेकिन आसनसोल के सारतपल्ली सांताडंगा में एक भाई पर शक गहरा गया है कि उसने अपनी बहन को मार दिया है। दरअसल जिस भाई विधान चंद्र पाल पर अपनी अविवाहित बहन सीमा पाल को मार देने का आरोप लग रहा है, वह पड़ोसियों को बिना बताए बहन की लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहा था। लेकिन लोगों ने उसे लाश ले जाने से रोक दिया और हीरापुर थाना पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई है और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल ले गई। अस्पताल में मौजूद सीमा पाल के एक रिश्तेदार ने जो बताया वह चौंकाने वाली बात है। ঘটনাটা হচ্ছে আমার জ্যাঠতো দাদা, জ্যাঠতো দিদি, হ্যাঁ, এই এক মাসের মধ্যে দুজন বোন কি করে মরে। ঘরের মধ্যে বিনা ট্রিটমেন্টে রেখে দিচ্ছিল না, কি করছে কোনো কাউকে কোনো কিছু জানে না, নিজের মতো থাকে, কিছু বলেনি, কোনো কিছু করেনি। তো আজকে হঠাৎ এর আগে 14 এপ্রিল আরেকটি বোন বর দিয়ে আমার যে ছিল শম্পা পাল, সে মারা গেছে। তাকে কাউকে কিছু না জানিয়ে তাকে ডেড বডি নিয়ে গিয়ে নিজে পুড়িয়ে নিয়ে চলে এসছে। আজকে সকালবেলায় এই বডিটা নিয়ে আসছিল, যাচ্ছিল, আমরা আটকেছি। এটা করে এখন পোস্টমর্টম করাবো, পোস্টমর্টম করিয়ে আমাদের সার্টিফাইড হবো যে কী করে মরলো। এক মাসের মধ্যে দুটো বোন তো মরতে পারে না। বলছি এই যে বোনরা আছেন, এই যে মারা গেছে এর নাম কি? এর নাম হচ্ছে সীমা পাল। বয়স কত? বয়স নিয়ার অ্যাবাউট ওই 50 কাছাকাছি। বিয়ে শাদী কিছু হয় না, বিয়ে শাদী করেন। বলছি এরা কি দুই বোন একসঙ্গে ঘরে থাকতো? হ্যাঁ, দুজনে একসঙ্গে থাকতো। কোন জায়গায় থাকতো? ওই সাদাপল্লি সাদাডাঙ্গা। সাদাপল্লি সাদাডাঙ্গা। তো মরে পড়ে আছে, খবর কে দিয়েছে? খবর আমরা পাইনি, বডি শ্মশান নিয়ে যাচ্ছিল, তখনই আমরা আটকেছি। কেউ খবর দেয়নি, জানাইনি। এর আগে একটা বোনকে তাই করেছে, এটাও তাই করছিল, সেটাকে আমরা এখন আটকেছি। আচ্ছা, তো এখন পোস্টমর্টম হবে, তারপর আপনি কি হবে? আমি ওর কাকা ছেলে। दरअसल इलाके के लोगों को इसलिए विधान चंद्र पाल पर अपनी बहन सीमा पाल की जान लेने का आरोप लग रहा है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उसकी एक और बहन की मौत हो गई थी। तब उसने उस बहन की मौत का कारण बीमारी बताया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि विधान ऑनलाइन लॉटरी खेलता है, इसलिए उसने अपने रास्ते से बहनों को हटाने के लिए ही उन्हें मारा है ताकि जमीन जायदाद उसके नाम पर हो जाए। विधान की संदिग्ध हरकतों और उसकी बहन की संदिग्ध मौत पर एक पड़ोसी ने क्या देखा, उसने खुद मीडिया को बताया। ও আজকে 7:25 নাগাদ আমি মর্নিং ওয়াক করে আসছি, তখন ওকে যে এই বাড়ির ছেলেটা, এর নাম হচ্ছে কি বিধানচন্দ্র পাল, একে দেখলাম আমি গাড়ির মধ্যে বসে আছে, মানে গাড়ি ভাড়া করে এনেছে, গাড়ি বসে আছে। আমাকে দেখে মুখটা লুকিয়ে নিল, লুকিয়ে আমি চলে গেলাম। চলে গেছে আমি আবার ব্যাক করে আসলাম। ব্যাক করেছে আমার সঞ্জীব লাহিড়ি বলে একটা ছেলে আছে, এর পাশে দোকানটা আছে, সঞ্জীব লাহিড়ি এর দোকান আছে। এ আমাকে বললো মন নয় তুমি এসো, হ্যাঁ দেখো কি কাণ্ড করছে, এটাকে মেরে দিল, আগের টাকা মেরেছে, এটাকে মারলো। তো প্রথম গাড়ি এনেছে, আর দেখো আমি ঘর থেকে আসছি, তুমি আটকে রাখো, হ্যাঁ তাকে আটকে রাখো। ও তারপরে ওকে করবে, ওকে ধরে আনলো, তখন থানা পুলিশ করা হলো। তখন ও কী করেছে, যখন গাড়িটাকে নিয়ে আসলো তখন দেখতে ওর একাই টেনে হেঁচড়ে নামালো, নামিয়ে তাকে চাপালো। তো অনেক লোক জোড়া হয়ে গেছে, অনেকে চট্টা পড়ে মারলো ওকে। মারার পরে এবার পুলিশকে খবর দিল, পুলিশ আসলো, পুলিশ আসার পরে সব কিছু বলা হলো, চলে গেল। কিন্তু ওনার বক্তব্য হচ্ছে যে ওর বোনের নাকি শরীর খারাপ ছিল। শরীর খারাপ আমরা বলেছি হাজারবার, সবাই বলেছি, আমরা বলিনি তোমার যদি শরীর খারাপ হয়, কাউকে কিছু হয়, হ্যাঁ आगे जो बेड सोले मारे गए, এটা তো মরবে না তো। आरोपी विधान चंद्र पाल को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। हालांकि विधान ने मीडिया से बात करते हुए इस बात से इनकार किया है कि उसने अपनी बहन को मारा है। আমাকে পাড়ার লোক অবজেক্ট করেছে যে আমার বোনকে আমি গলা টিপে মেরেছি,
হ্যাঁ আর ইয়ে খেতে দিইনি পড়তে দিইনি মা বাবাকেও মেরেছি বড় বোনকেও মেরেছি সম্পত্তির লোভে হ্যাঁ একে মারা উচিত দিয়ে দিল আমাকে চোখে ধর করবো এটা ওদের ইয়ে মানে বডি চলে যাচ্ছিলেন হ্যাঁ আপনি কার পক্ষে মানে বডিটা নিয়ে যাচ্ছিলেন? পরীক্ষা কি ওটা তো নর্মাল দেখবে নর্মাল বডি পুলিশকে জানিয়েছিলেন না জানিয়েছিলেন? জানিয়েছিলেন আপনি? বডি যেমন আমরা আহা তোমার নাম কি? পুলিশকে জানিয়েছিলেন কি আমি বডি নিয়ে যাচ্ছি? আমি তো বাড়ি ইয়ে করি তো আমাদের ডেথ সার্টিফিকেট হয়েছিল অভিযোগ তো তুমি আপনি নিয়ে যাচ্ছিলেন লুকিয়ে পড়ে বডি, কেন লুকিয়ে তাই তো অভিযোগ হচ্ছে। আপনার টাকা তো ভাই বলছে তো, ও বলছে এবার ও বলছে গলা টিপে মেরেছে তো তুমি বডি নিয়ে যাচ্ছিলে কেন পুলিশকে না জানিয়ে? হ্যাঁ পুলিশকে না জানিয়ে বডি নিয়ে যাচ্ছিলে কেন? পুলিশকে আরে বাবা নর্মাল বডি কি জন্য মারা গেছে? নর্মাল কিসের? কিভাবে মারা গেল? কিভাবে মারা গেল? করেছে অ্যাটাক করেছে কনস্ট্রাকশন ছিল হ্যাঁ আমাকে বলেনি তোমার নাম কি? আপনার নাম নাম কি? আপনি আমার কাছে অতি অবশ্যই আসবেন बहरहाल जब सीमा पाल की लाश पुलिस लेकर जिला अस्पताल आई तो डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करने से पहले उसके पार्थिव शरीर की जांच पड़ताल की है। उसकी संदिग्ध मौत पर से पर्दा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हटेगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आखिर बुधवार की सुबह चक्रवाती तूफान पास का आगमन उड़ीसा के बालेश्वर के निकट हुआ और इसके प्रभाव से जहां उड़ीसा में भयानक तबाही मची है, वहीं बंगाल के दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर में भी तबाही देखने को मिला है। लेकिन पश्चिम बर्धमान जिले में सुबह से तेज हवाएं चल रही है और फिर दोपहर के बाद से रुक रुक कर कभी तेज तो कभी धीमी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा कि तूफान यास की वजह से पश्चिम बर्धमान जिले में बृहस्पतिवार को भारी बारिश होगी। बहरहाल बुधवार को पूरे जिले में तेज हवाओं ने यह बताया कि तूफान यास आ चुका है। इस दिन भारी बारिश नहीं होने से झारखंड और बंगाल की सीमा पर स्थित मैथन डैम का जलस्तर बढ़ा नहीं है, पहले की तरह ही डैम में जलस्तर दिखाई दे रहा है। हालांकि तेज हवाओं के कारण डैम का पानी खूब हिलोरे मार रहा है। एक दिन पहले ही पुलिस प्रशासन ने डैम के आसपास रहने वाले लोगों को डैम में न उतरने की चेतावनी जारी कर दी थी। आसुसो शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। केंद्र
द्वारा संसद द्वारा पारित कराए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में किसान का आंदोलन के 6 महीने हो गए हैं। इस अवसर पर पूरे देश समेत आसनसोल में भी काला दिवस मनाया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आसनसोल में संयुक्त किसान मोर्चा के साथ ही तृणमूल कांग्रेस द्वारा भी प्रदर्शन कर मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया। आज पूरे भारत में किसान विरोधी दल के खिलाफ जो आंदोलन छिड़ा था 26-25 नवंबर को, आज उनका पूरा 6 मास हो चुका है। हमारे भारत देश के किसान, हमारे अन्नदाता जो पिछले 6 महीने से पूरे देश के दिल्ली की बॉर्डर में बैठकर अपनी मांग को लेकर, अपनी हक को लेकर जो आवाज उठा रही है, आज तक मोदी सरकार ने उनकी तरफ ताकना भी नहीं, बल्कि क्यूटेशन के हिसाब से खाली एक बार बैठक कर कर और हमेशा टाल मटोल की राजनीति किया गया है। ये भारत देश क्या अन्नदाता के खिलाफ जो लड़ाई पूरे भारत में किसानों का फेवर में चलाया जा रहा है, आज हमारे संयुक्त मोर्चा किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से आज इस कला दिवस के तौर पर हम लोग भी यहाँ पर मोदी का पुतला दान किया है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. विधानसभा चुनाव शुरू होने के पहले और बाद में भी आसनसोल शिल्पांचल के मंदिरों में चोरी की गई या फिर मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। एक बार फिर ऐसी ही घटना हुई है। यह घटना कुल्टी थाना क्षेत्र के चौरंगी फाड़ी अंतर्गत लक्ष्मणपुर गांव की है। यहाँ एक दुर्गा मंदिर है जो विशेष रूप से गांव के ब्राह्मण परिवार का पारिवारिक मंदिर है। इसी मंदिर का ताला तोड़कर मंगलवार की रात को चोरी हुई है। पूजा के सामानों से लेकर अन्य सामानों की चोरी हुई। इसी मंदिर में शिव मंदिर है जहां से पूजा करने के बर्तनों की चोरी हुई है। इस गांव के बासिंदा अमर बनर्जी ने बताया कि यह पहली बार है कि इस मंदिर में चोरी हुई है। पारिवारिक बनर्जी मुखार्जी এবং চ্যাটার্জিদের পারিবারিক নিজস্ব দুর্গা পূজা এবং 200 বছরেরও পুরানো, অনেক প্রাচীন থেকে চলছে। আমরা এবং প্রচুর গ্রামের মানুষ এখানে এই আমাদের শিবের মন্দির, শিব আছে ভেতরে, সারা বছর বিষ্ণু সেবা চলে, মা দুর্গা আছে, মঙ্গলচণ্ডী আছে, যেটা কখনো হয়নি। এটা আজকে প্রথম দেখলাম। আমাদের মূল গেটের তালা ভেঙে ভিতরের আমাদের 2-3টে মন্দির ভিতরে ঢুকে আমাদের যে বিষ্ণু, যে মোটামুটি আমাদের মানে জাগ্রত বিষ্ণু, তার সেবা চলে, তার পৈতাও তুলে নিয়ে চলে গেছে, তার সিংহাসন যেটাতে তাকে রাখা হয় সেই সিংহাসনটাও নিয়ে চলে গেছে, তার খড়গও নিয়ে চলে গেছে এবং তার সাথে যে আমাদের আনুষঙ্গিক পূজার জিনিস থাকে সেগুলো মোটামুটি একটু দামি জিনিস, সব কিছু মূল্যবান, সেগুলোকেও নিয়ে চলে গেছে। সেখান থেকে ঢুকে আবার শিব মন্দিরে আমাদের প্রদীপ নানান তামার জিনিসপত্র সব কিছু নিয়ে চলে গেছে। আমরা এ নিয়ে খুব চিন্তিত আছি, কারণ গ্রামের ভেতরে যেটা কখনো হয় না, আস্তে আস্তে এই মানে আমরা প্রশাসনের কাছে একটাই আবেদন রাখবো যেন এটা নিয়ে খুব মানে ঘোরতর একটা পদক্ষেপ নেওয়া হয়। শিল্পাঞ্চল बंगला भाषा के विद्रोही कवि के रूप में परिचित काजी नजरुल इस्लाम का 122वां जन्मदिन बुधवार को मनाया गया। आसनसोल के आश्रम मोड़ स्थित काजी नजरुल इस्लाम की मूर्ति स्थल पर आसनसोल नगर निगम द्वारा एक सादे समारोह में उनकी जयंती मनाई गई। नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी, प्रशासकीय बोर्ड के सदस्य अभिजीत घटक, पूर्व पार्षद रबीउल इस्लाम, नगर निगम के OS वीरेंद्रनाथ अधिकारी ने माल्यार्पण कर अपनी अपनी श्रद्धांजलि दी। उधर काजी नजरुल के जन्म स्थान चुरुलिया में उनके समाधि स्थल पर कवि के परिवार और चुरुलिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से एक संक्षिप्त कार्यक्रम कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। এরপর মারা যাওয়া যে সদস্য প্রাপ্ত MIC